Hello students, welcome to our channel Yasir Ali Classes. So students, today we are going to study about word formation. What do you mean by word formation? Word formation is a method of forming new words, of creating new words, okay? Now under this word formation there are several processes, like you can see over here I have written on the board. There are basically 6 to 7 processes, but these are the main process through which we create a new word, through which we form a new word, okay? So the first one is affixation, the second is compound words, third is clipping, fourth is acronym, fifth is borrowing, and the sixth one is blending. Okay, so basically we are going to see the sixth process of forming or creating a new word, and we are going to study about these process in detail कि क्या होता है इन process में actually. Okay, so starting from the first point, affixation. Now what do you mean by affixation? डू एनी वन नो? ये बहुत ही बेसिक है. अगर आप, हो सकता है कि आपने ये वर्ड एफिक्सेशन ना सुना हो, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ एक्चुअली एफिक्सेशन तो आप सबको याद आ जाएगा कि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बेसिकली एफिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड बाय एडिंग एफिक्सेस. नाउ व्हाट इज़ एफिक्सेस? बाय एडिंग एफिक्सेस वी फॉर्म अ न्यू वर्ड. नाउ हियर एफिक्सेस मीन्स either suffix or prefix. I'm sure आपने suffixes and prefixes के बारे में पहले ज़रूर पढ़ा होगा. Okay, now what is suffix and what is prefix? Suffix is a word, it is not a word, it is actually a syllable. Okay, so syllable का मतलब हुआ which is not a word, only a group of letters. It can be group of 2 letter, it can be a group of 3 letter. Okay, तो अगर इस तरह का कोई group of letter होता है जो कि एक word नहीं है, जिसका अपना खुद का कोई meaning नहीं है, तो हम उसे syllable कहते हैं. Okay, so under affixation comes affixes, and affixes are suffix and prefix. Suffixes are the word. First let me clear suffixes. So basically suffixes are the syllable which is joined, or you can say which is added at the end of the word. Okay, at the end of any word. Okay, अब आपका जो भी एग्जिस्टिंग वर्ड है, कोई भी वर्ड आप अपना ले लें, उसके एंड में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, कोई सिलेबल ऐड कर रहे हैं, तो वो सफिक्सेस है. दैट विल कम अंडर द प्रोसेस ऑफ सफिक्सेस. फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई गिव यू द बेसिक एग्जाम्पल. मेरा वर्ड है हैप्पी. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना वर्ड लिया हैप्पी. Now I have to add suffixes over here. I can add the suffix plus NESS. Now the word NESS, or you can say syllable NESS, इसे हम word भी कह सकते हैं क्योंकि NESS को हम pronounce कर सकते हैं नेस. लेकिन कुछ syllable ऐसे होते हैं जिसको हम pronounce नहीं कर सकते, तो इसलिए हम we better call it syllable. Okay, so happy plus ness, it will give you happiness. Now you see, while writing happiness we change the spelling. ये YI में change हो जाता है whenever we'll use NESS, and if the last letter of the word is Y तो वो YI में change हो जाता है. Okay, तो जब भी आप इस तरह के words form करें तो आप spelling का ध्यान ज़रूर रखें. Okay, so this is an example of suffix. Okay, इस तरह के हम और भी बहुत सारे example ले सकते हैं. Like for example comfort. My word is comfort. अब इसमें अगर मैं able यूज़ कर दूँ, ABLE, comfortable, it will be a new word. You see, another example of suffixes. So basically what I want to explain is the suffixes are the words or syllable
एडेड एट द एंड ऑफ एनी वर्ड, जो भी आपका एग्जिस्टिंग वर्ड है उसके एंड में जब भी हम कुछ ऐड करते हैं और उससे एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, लाइक हैप्पीनेस इज़ अ न्यू वर्ड ओवर हियर, कंफर्टेबल इज़ अ न्यू वर्ड ओवर हियर, तो वो सफिक्सेस होता है, लाइक दैट विल कम अंडर द प्रोसेस ऑफ सफिक्सेस एंड दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड। सो हमारा आज का जो लेसन है वो वर्ड फॉर्मेशन पे है। हमें देखना है कि हम किस तरह से कौन कौन से प्रोसेस हैं जिससे हम न्यू वर्ड फॉर्म करते हैं, न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं। देयर आर मेनी प्रोसेस, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट सफिक्सेस। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए सफिक्सेस के। नाउ कमिंग टू प्रीफिक्स, इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हैं, आपको मैंने सिर्फ ये दो दिया है, एक एबल और एक नेस्ट। इस तरह से आपका जो बेसिक, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको वर्ड सेलेक्ट। Now ION, it will give you selection. Now you see, ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है सफिक्स का ION। हम बहुत सारे वर्ड्स में ION का यूज़ करते हैं, वी ऐड ION एट द एंड ऑफ द वर्ड, तो ये भी सफिक्स का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे सफिक्सेस मिलेंगे, ओके। इट कैन बी एग्री प्लस मेंट, एग्रीमेंट, ओके। सो देयर आर मेनी। Now coming to prefix, what is prefix? Suffix or prefix? Now coming to prefixes, okay? Prefix का क्या process है? Now this is a group of letter or you can call syllable. Now syllable added before a word, before any existing word, to form a new word, okay, is called prefix. Now you see, सफिक्स में हमने देखा कि हम एंड में जब भी कोई वर्ड यूज़ करते हैं, ओके, तो वो सफिक्स होता है। लेकिन प्रीफिक्स का सॉरी दिस इज़ रॉन्ग ओवर हियर। प्रीफिक्स का एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे के दिखाऊंगी, लेकिन इसमें प्रीफिक्स में बेसिकली हम वर्ड के आगे सिलेबल्स ऐड करते हैं, ना कि वर्ड के एंड में। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिया हैप्पी, मैंने आपको पहला एग्जाम्पल भी हैप्पी दिया था, जिसमें मैंने जब लास्ट में NESS ऐड किया तो वो हैप्पीनेस बन गया। लेकिन अगर मैं हैप्पी के आगे कुछ ऐड करूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसके आगे UN ऐड कर देती हूँ तो दिस विल बी अनहैप्पी। नाउ यू सी, by adding un to this word happy, I have created a new word over here which means completely different from the actual existing word over here. इसका meaning complete different हो गया, पूरा change हो गया। happy का मतलब कुछ और होता है and unhappy just opposite होता है। So you see, this is the way we can create a new word by adding syllables before any existing word. कोई भी word है उसके आगे अगर हम कोई syllable लगाते हैं तो वो prefix के अंदर आता है। Like for example, आपको मैं और example अगर दूँ तो like un plus do, undo। इसी तरह से मैं और एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो DIS दिस प्लस ऑनेस्ट, इट विल बी डिसऑनेस्ट। तो बेसिकली हम प्रीफिक्सेस का जो यूज़ करते हैं वो हम एंटोनियम्स के लिए यूज़ करते हैं। हम उससे एक एंटोनियम वर्ड यानी अपोजिट वर्ड फॉर्म करते हैं, ओके। तो अनहैप्पी, अनडू, डिसऑनेस्ट, ऑल दीज आर जस्ट द अपोजिट ऑफ द existing word, okay. There are many more, आप जैसे for example IR and responsible, now it will be irresponsible, okay. So this will be irresponsible। तो अभी हमने देखा कि एफिक्सेशन के अंदर जो प्रोसेस होता है वो सफिक्स एंड प्रीफिक्स का होता है। सफिक्स इज बेसिकली एडिंग सिलेबल एट द एंड ऑफ द वर्ड एंड प्रीफिक्स इज एडिंग सिलेबल बिफोर द वर्ड। एनी वर्ड विच एवर यू आर टेकिंग, इफ यू आर गोइंग टू एड एनीथिंग, एनी सिलेबल बिफोर द वर्ड, दैट विल बी प्रीफिक्स, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, दैट इज कंपाउंड वर्ड। आई होप सफिक्स एंड प्रीफिक्स इज क्लियर टू यू पीपल। So now coming towards compound word. Now what is compound word?
Compound word is a process of creating a new word by joining two different words. Okay, so this is the process of creating a new word by joining two different word of two different meaning. A new word by joining two different words, or you can say two words. इसका एग्जाम्पल मैं भी आपको दूंगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लिया रेन. नाउ दिस वर्ड रेन, ये आपका एक वर्ड हो गया. हमने दूसरा वर्ड ले लिया बो, ये आपका दूसरा वर्ड हो गया. नाउ यू सी द मीनिंग ऑफ रेन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. रेन खुद इंग्लिश लैंग्वेज में रेन अपना एक खुद का वर्ड है, डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है. रेन का अलग मतलब होता है, बो दूसरा वर्ड हो गया जिसका अपना अलग वर्ड होता है. लेकिन जब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी, सपोज आई एम ज्वाइनिंग रेन प्लस बो, देन इट विल बिकम अ न्यू वर्ड विच इज़ रेनबो. अब आप देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स को मैंने ज्वाइन करके एक तीसरा वर्ड क्रिएट किया है जिसका मीनिंग कंप्लीट डिफरेंट है. फर्स्ट वर्ड रेन का मतलब होता है बारिश, सेकेंड वर्ड बो का मतलब होता है यू कैन कॉल द बो टाई. ओके, एंड देन दिस इज़ रेनबो. आप सबको पता है कि रेनबो क्या है. तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक ब्लैक प्लस बोर्ड. अब आप देखिए ब्लैक इज द कलर, बोर्ड यू कैन कॉल एनी बोर्ड. नाउ दिस इज ब्लैक बोर्ड. सो दिस इज कंपाउंड वर्ड. ओके, इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मिल्क प्लस मैन, इट विल बी मिल्क मैन. यू सी, दो वर्ड्स, दो डिफरेंट वर्ड्स को आप ज्वाइन करके एक नया वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, एंड दिस वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड. ये जो नया वर्ड आपने क्रिएट किया दो वर्ड्स को ज्वाइन करके, इसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं. इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको डिक्शनरी में मिलेंगे. इफ़ नॉट डिक्शनरी, आप गूगल कर सकते हैं एग्जाम्पल्स, सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स. ओके, तो आई थिंक दिस वॉज द ईजीएस्ट वन. ये अब तक का सबसे ज़्यादा ईजी वे था. वैसे सफिक्स एंड प्रीफिक्स भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप समझ जाएं तो, और अगर उसका सही यूसेज आपको पता होना चाहिए कि हम किस वर्ड के साथ, लाइक सफिक्स एंड प्रीफिक्स में क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि किस वर्ड के साथ कौन सा सफिक्स यूज़ करना है या किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वर्ड के साथ अन यूज़ करना है और आपने डिस यूज़ कर दिया तो वो रॉन्ग होगा. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने हैप्पी के साथ अन यूज़ किया था तो अनहैप्पी. अब इसकी जगह अगर मैं डिस यूज़ कर दूँ, डिस हैप्पी, आप गूगल कर लें, डिस हैप्पी करके कोई वर्ड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो अगर आप रॉन्ग प्रीफिक्स या रॉन्ग सफिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपका वर्ड गलत हो जाएगा. इसलिए यू शुड नो द करेक्ट यूसेज, appropriate usage of the suffixes and prefixes. okay, तो अब तक हमने सिर्फ दो पॉइंट डिस्कस किया है. पहला था affixation, that is suffixes and prefixes, and the second is compound word which I have written over here. Creating, it is the process of creating a new word by joining two different words. हम दो different word को जब join करके एक word बनाते हैं तो वो हमारा compound word होता है. Now coming towards clipping. What is clipping? Clipping is a process of cutting, or you can say shorten up, like I'll write it here on the board. It is a process of shortening the word. okay, a word. Like for example, अब यहाँ shortening का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर कोई word है जो exist करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको आप कट करके, क्लिप करके, क्लिपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग. ओके, अगर उसको आप शॉर्ट कर दें, शॉर्ट बना दें और वो वर्ड फिर उससे, उस वर्ड से वो फेमस हो जाए तो वो क्लिपिंग का एग्जाम्पल होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल दूंगी. द वर्ड मैथमेटिक्स आप सबका सब्जेक्ट है, आई नो. अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया है मैथमेटिक्स का,
हाउ मेनी ऑफ यू कॉल मैथमेटिक्स? आप में से कितने हैं जो इस सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स कहते हैं? हार्डली फ्यू, शायद एक या दो, क्योंकि हम सब इसे मैथ्स कहते हैं इन शॉर्ट, इजंट इट? हम इसे मैथ्स कहते हैं। कोई भी, शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जो इतना पेन लेगा मैथमेटिक्स बोलने का। हर कोई शॉर्ट में, चाहे वो टीचर हो या वो स्टूडेंट हो, हर जगह मैथ्स का यूसेज हो रहा है आजकल। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लिपिंग। अब आप देखिए, हमने मैथ्स एक वर्ड फॉर्म कर लिया, क्रिएट कर लिया है, और यही वर्ड यूज़ भी हो रहा है हर जगह, और ये करेक्ट भी है, ये रॉन्ग भी नहीं है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लिपिंग। सॉरी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे एक बड़े से वर्ड को शॉर्ट किया है, क्लिप किया है, कट करके एक न्यू वर्ड फॉर्म कर दिया है। आपको इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूँ, एक सिंपल सा लैबोरेटरी, आजकल हम उसे लैब कहते हैं, इजंट इट? तो लैब इज़ ऑल्सो अ वर्ड जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो असल में एक्चुअल वर्ड है वो लैबोरेटरी है, इजंट इट? तो उसको हमने शॉर्ट कर दिया। तो दिस इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ क्लिपिंग। तो बेसिकली दिस इज़ अ शॉर्टनिंग ऑफ अ वर्ड। अगर हम किसी भी वर्ड को कट करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो वो क्लिपिंग के अंदर आएगा। Now coming to acronym, what is this? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। This is a process of creating a word, creating a new word by adding the initials of another word. Like for example, initials से मेरा मतलब है कि बहुत सारे words हैं और उसका जो initial letter है, हम उसको लेकर के एक word बना रहे हैं। Like एक simple से example लेते हैं, as soon as possible। ठीक है, ये हमारा एक फ्रेज हो गया, as soon as possible। आप में से बहुत होंगे जो इसको इस वे में यूज़ करते होंगे, ASAP, and we also call it ASAP, isn't it? तो ये क्या हुआ, ये मैंने कैसे, ये मैंने जो वर्ड अभी यहाँ सॉरी, ये जो वर्ड मैंने अभी यहाँ क्रिएट किया है, ये मैंने कैसे किया है? मैंने इसका एस का इनिशियल ए लिया, मैंने सून का इनिशियल एस लिया, फिर इस एस का इनिशियल ए लिया और ये पॉसिबल का इनिशियल पी लिया, और ये मिला करके ये वर्ड फॉर्म हो गया ASAP। सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्रोनियम। ओके, हम किसी भी बहुत बड़े जो भी हमारे फुल फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ जिसको हम लिख नहीं सकते। अब अगर मैं कहीं लिखूँगी as soon as possible, तो ये कितना लंबा प्रोसेस है, तो हम इसे इस शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादातर हम इसका यूज़ मैसेज एंड ऑल में करते हैं, व्हाट्सएप में करते हैं, इनफॉर्मल होता है, लेकिन जब भी अगर हम as soon as possible लिखेंगे तो हम फॉर्मल वे में लिखेंगे। लेकिन कभी कभी रिटन में भी कुछ एक्रोनियम्स ऐसे जो हम शॉर्ट में यूज़ करते हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल यूनिसेफ, UNICEF, आप सबको इसका फुल फॉर्म पता होगा। तो ये भी एक्रोनियम का प्रोसेस है, ये भी इससे क्रिएट हुआ है। यूनिसेफ कह के हम इसको हम हर जगह फॉर्मल इनफॉर्मल हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसी तरह से WHO, आप सबको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इजंट इट? तो हम शॉर्ट में WHO हम अपने स्पीच में भी यूज़ करते हैं, हम अपने रिटन में भी यूज़ करते हैं। इसी तरह से पिन कोड, PIN, आप सब जब इसका फुल फॉर्म यूज़ करेंगे, देखेंगे तो ये सब बहुत बड़े फुल फॉर्म्स हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। पिन हम बोलते भी हैं, हम पिन लिखते भी हैं। तो दिस विल ऑल कम अंडर द प्रोसेस ऑफ acronym. Okay, so this was my fourth point over here which I discussed with the people right now. Now coming to, अब मैंने ये रब कर दिया तो मैं यहाँ सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आप कभी बाद में भूलें ना। लाइक यूनिसेफ, basically this is a process of adding the initial letter of different words and creating a new word. Okay, so now WHO, PIN, all these are examples of acronym. Fine. Okay, now borrowing.
What does it mean? Now this is my fifth point, borrowing. Borrow से क्या मतलब है? Borrow का मतलब आप सबको पता होगा, I'm sure. Borrow का मतलब हम किसी से जब कुछ लेते हैं ना, हम यहाँ पे किसी से क्या ले रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या मतलब है इसका, borrowing का. Now here it means when we borrow a word from another language. अब देखिए इंग्लिश एक वाहिद लैंग्वेज तो है नहीं, बहुत सारे लैंग्वेज है, फ्रेंच है, इटालियन है, जर्मन है, तो इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेज है इंग्लिश के अलावा. तो अगर हम किसी और लैंग्वेज से कोई वर्ड बोरो कर रहे हैं और उससे अपना एक वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ बोरोइंग के वर्ड्स है, लाइक जो मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लाई थी, लाइक सिगार. ये एक स्पेनिश वर्ड है, but nowadays we use it in our English language. Now another, cartoon. ये एक इटालियन वर्ड है, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ये इटालियन वर्ड से लिया गया है और ये स्पेनिश वर्ड से लिया गया है. तो इस तरह से आपको बहुत सारे, कुकीज़, ये भी हमारा लैंग्वेज नहीं है, कुकीज़ भी हमने डच लैंग्वेज से लिया है. ओके, तो आपको इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे. आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं सिंपल बोरोइंग वर्ड, तो आपको लैटिन, स्पेनिश, इटालियन, डच, फ्रेंच, जर्मन, आपको बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस मिलेंगे जिससे हमने वर्ड्स बोरो करके इंग्लिश के वर्ड्स फॉर्म किए. तो ऑल दोज वर्ड्स विल कम अंडर द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट बोरोइंग, कि जब हम किसी दूसरे लैंग्वेज से बोरो करते हैं, व्हेन वी बोरो अ वर्ड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज. ओके, व्हेन वी बोरो अ वर्ड from another language. मैंने लैंग्वेज का यहाँ शॉर्ट लिखा है. ओके, सो दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ क्लिपिंग. मैंने देखिए लैंग्वेज का यहाँ शॉर्ट क्लिपिंग यूज़ कर लिया. ओके, तो ये बोरोइंग होता है हमारा. नाउ कमिंग टू ब्लेंडिंग. व्हाट इज़ ब्लेंडिंग? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगर आप ध्यान दें तो हम यूज़ भी करते हैं आजकल अपने लैंग्वेज में. पता नहीं है कितना सही है, फॉर्मल वे में तो हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन इनफॉर्मल में हम बहुत यूज़ करते हैं. अब तो ये फॉर्मल में भी यूज़ होने लगा है. तो ब्लेंडिंग इज़ बेसिकली creating a new word by blending two different words. लेकिन ये ऐसे ही blend नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको compound words बताया था. compound words is like joining two different words, है ना, वो मैंने सीधे join कर दिया, like rain plus bow. ये देखिए मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाया है, ये पूरा रेनबो बन जाएगा. ओके, इसके ना स्पेलिंग में चेंजेस आए हैं और ना ही मैंने इसको आगे पीछे किया है. ये एज इट इज़ रेन प्लस बो ऐड करके रेनबो बना है. लेकिन ब्लेंडिंग कंपाउंडिंग से थोड़ा डिफरेंट है. कंपाउंडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ joining two words and forming or creating a new word. ओके, बट ब्लेंडिंग में क्या होता है, हम एक वर्ड का इनिशियल पार्ट लेते हैं और दूसरे वर्ड का एंड पार्ट लेते हैं. ओके, वी टेक द इनिशियल पार्ट ऑफ वन वर्ड एंड द end part of another word and then we join the word and then we create a new word. Like for example, मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना पहला वर्ड लिया ब्रेकफास्ट. ओके, ये मेरा पहला वर्ड हो गया. मेरा दूसरा वर्ड है लंच. अब देखिए मैंने ब्रेकफास्ट का बी आर लिया इनिशियल, मेरा पहला वर्ड का इनिशियल मैंने बी आर लिया और अपने दूसरे वर्ड का मैंने एंड का पार्ट लिया. ओके, UNCH लिया. अब इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इट विल बी ब्रांच, BRUNCH, ब्रांच. आई एम श्योर आपने ये सुना होगा. व्हाट इज़ ब्रांच? ब्रांच इज़ बेसिकली, अगर हमारा एक ब्रेकफास्ट का अपना टाइम है और लंच का भी अपना टाइम है, लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच को मिक्स करके कोई बीच के टाइम में अगर आप कुछ ले रहे हैं तो यू कैन से दैट आई हैड अ ब्रंच टुडे. ओके, नेदर ब्रेकफास्ट नॉर लंच, ना ही आपने ब्रेकफास्ट किया है ना प्रॉपर लंच किया है, यू हैड ब्रंच. ओके, यू हैड अ ब्रंच. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया ब्लेंडिंग का, कि वी कैन टेक द इनिशियल ऑफ
one word and the end part of another word, and we can form a new word. Okay. So children, this was all about the word formation. I hope this is clear to you people. हमने इसके अंदर 6 प्रोसेस देखे हैं वर्ड फॉर्मेशन का. पहला प्रोसेस है affixation. Now affixation के अंदर हमारा suffix and prefix आता है. Suffix is basically adding a syllable at the end of the word, and prefix is adding a syllable before the word. Okay. Now compound words. Creating a new word by joining 2 different words. You can see the example over here. Rain plus bow, rainbow. Now clipping. As I said, we short the word. The shortening process of a word. Like यहाँ पे मैंने example आपको जो दिया था वो मैंने यहाँ से हटा दिया है. For example, एक new example ले लेते हैं. Like examination. हम examination को सिर्फ exam कहते हैं. तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लिपिंग. मैंने आपको एग्जाम्पल मैथमेटिक्स दिया था जिसका हम सिर्फ मैथ्स कहते हैं. नाउ एक्रोनियम इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग द इनिशियल लेटर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एंड फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड. ओके. नाउ कमिंग टू बोरोइंग, एज आई सेड, वी बोरो वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड वी क्रिएट अ न्यू वर्ड. नाउ ब्लेंडिंग. You can see the example over here. Blending is the process of adding the initial part of one word and the end part of another word and then creating a new word. So children, this was all for today. This was all about the word formation. Please don't forget to subscribe our channel for more informative videos. ज़्यादा से ज़्यादा हमारे channel को share करिए and please press the bell icon. Thank you.